Good morning, students. I am your Sanskrit teacher, Mr. Parikshit Rana. Welcome you all in my YouTube channel. Now, slok number 5th. Look here. यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निगलसन छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मण. Now the meanings of these words. Yatha means as. Kanakam means gold. As the gold is, parikshate means examine. Chaturbhihi means by 4 ways. So the translation of first line, as the gold is examined by 4 ways. As the gold is examined by 4 ways. Which are the 4 ways? These are the 4 ways. Which? Nigarsan means by rubbing. Chedan, cutting means by cutting. Tapa, by heating. And tadanaihi means by striking. Okay? I repeat. As the gold is examined by 4 ways, by rubbing, cutting, heating and striking, like that. Tatha means like that. Purusah parikshate chaturbihi. Human being is examined by 4 ways. Which are the 4 ways? Given here. Shruten, Shruti means knowledge. By knowledge. Shilen means character. Gunen means virtue. And Karmana means by action. So, human being is examined by 4 ways. Knowledge, by character, virtues and action. I repeat, as the gold is examined by 4 ways, by rubbing, cutting, heating and striking, like that, human being is examined by 4 ways, by knowledge, character, virtues and action. Okay? Now, slok number 6. आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवाञ्जनेयः. We will start in this way. We should remember. हम सबसे पहले ये वर्ड लिखेंगे. We should remember Ram in difficulty. Apatsu means difficulty. So we should remember Ram in difficulty. Bhim in battlefield. Samresu means battlefield. Danesu means charity. Karna in charity. Krishna in statesmanship या तो कृष्ण इन पॉलिटिक्स. भीष्म इन प्रतिज्ञा परिपालन, सो कीपिंग प्रोमिसेस. एंड अंजनेय, अंजनी पुत्र हनुमान. सो भवांजनेय मीन्स हनुमान. हनुमान इन विगोरस वर्क, vigorous deeds. Okay? I repeat. We should remember Ram in difficulty, Bhim in battlefield, Karna in charity, या तो Karna in giving donation, Krishna in politics, या तो statesmanship, Bhishma in keeping promises, and Hanuman in vigorous वर्क. तो यहां पर ऐसा कहा गया है कि हमें
जब भी डिफिकल्टी आए या डिफिकल्टी हो तो राम को याद करना चाहिए, युद्ध के समय भीम को याद करना चाहिए। भीम को याद करना चाहिए कहने का मतलब कि उसके जैसा बनना चाहिए। जब डिफिकल्टी आए तो हमें राम जैसा बनना चाहिए, जब युद्ध की बात चल रही हो तो भीम जैसा बनना चाहिए। कर्ण की दान की बात हो तो कर्ण, पॉलिटिक्स की बात हो तो कृष्ण की तरह बिहेव करना चाहिए, और प्रतिज्ञा लेने की या तो प्रतिज्ञा का पालन करने की बात हो तो हमें भीष्म जैसा बनना चाहिए, यानी भीष्म को याद करना चाहिए। और बहादुरी का कोई भी कार्य हो तो हमें हनुमान जैसा बनना चाहिए। श्लोक नंबर 7, लास्ट श्लोक, लुक हियर। प्रारंभते न खलु विघ्न भय नीचैः, प्रारंभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारंभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। ओके, लुक हियर। प्रारंभते means started, न खलु means not really, विघ्न भयन ड्यू टू फियर, एंड नीचे ही यानी नीच पर्सन, बैड पर्सन, wicked person. So in the first line poet says that a wicked person, bad person start the work, but due to fear they leave the work, they never start the work. Once again I repeat, a bad person start the work, but a bad person due to fear never start the work. ऐसा भी हम कह सकते हैं कि a bad person never start the work due to fear. प्रारंभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्यः. मध्यः means middle person. Middle person start the work, but विघ्न विहता due to obstacle विरमन्ति यानी leave, they leave the work. I repeat, a middle person start the work, but due to obstacle they leave the work. विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना. In spite of having obstacle again and again, we can say that facing trouble, प्रतिहन्यमाना का मतलब क्या है? facing trouble again and again, प्रारंभ्य च उत्तम जनाः न परित्यजन्ति. The best person never leave the work which he has started. Okay? इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बैड पर्सन होते हैं वो कभी भय के कारण कभी वर्क को स्टार्ट ही नहीं करते, वो देखते ही रुक जाते हैं कि मुझे डर के कारण वो स्टार्ट ही नहीं करते. और जो मध्यम लोग होते हैं वो एक बार वर्क स्टार्ट तो कर देते हैं पर उनको ऑब्स्टेकल आने से वो काम अधूरा वहीं पर छोड़ देते हैं. और जो उत्तम जन होते हैं वो एक बार स्टार्ट किया हुआ वर्क, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए, फिर भी वह स्टार्ट किए हुए वर्क को कभी छोड़ते नहीं है. तो इस श्लोक में 3 लोगों के बारे में बताया. एक तो नीच पर्सन यानी बैड पर्सन, मध्यम जनाः यानी जो मध्यम लोग होते हैं वह, और उत्तम लोग होते हैं वह. बराबर? ओके. आपको महाभारत के बारे में जो भी कुछ जानना हो तो उसको समझना हो, भगवान श्री कृष्ण को समझना हो, पांडवों को समझना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए. श्रीमद् भगवद गीता में हमारे जीवन से रिलेटेड, हमें जो जीवन में परेशानी आती है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, कभी सुख और दुख का ये चक्र हमेशा चलता रहता है. कर्म क्या है? कई लोगों ने
इस जन्म में अच्छे लोग होते हैं उसको ही कर्म का फल भुगतना पड़ता है, यानी बहुत दुख आता है। अच्छे लोगों को ज्यादा दुख आता होगा और जो बुरे लोग होते हैं वो आराम से ऐश आराम की जिंदगी जी रहे होंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? कर्म है, पिछले जन्म के कर्म। ये सब रहस्य आपको जानना हो तो आपको श्रीमद् भगवत गीता जो हमारा धर्म पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ओके, so thank you very much for listening this video and listening this chapter 7 Subhasit Kusumani, and the new chapter unit number 8 we will discuss in next video. Thank you very much.